Good morning, students. Welcome to the chemistry lecture. I am here Vikram Raj Purohit to teach you chemistry for class 12th. Today we are starting the chapter number 2 of first book, that is solutions, and this is very important, and the basics of this chapter is very easy, which is you had learnt in the class 11th class. Okay, so let us start chapter solution. What do you mean by solution? You all know solution equals to solvent plus solute. This combination is known as solution. You all know what do you mean by solvent and what do you mean by solute. The combination of solvent plus solute, that is known as solution. Solution is homogeneous mixture. Solution is homogeneous mixture, and here solvent in which solute is dissolved. Solute is dissolved in the solvent, which is this solvent is present in the large amount. जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, और जो हम उसमें डालते हैं, सपोज NaCl हमने 100 ग्राम में वाटर में डाला है, तो NaCl क्या है? दैट इज सोल्यूट एंड वाटर इज यूर सॉल्वेंट. ठीक है, तो होमोजेनियस है. और यहाँ पे हम बाइनरी सॉल्यूशंस लेंगे. तो सॉल्यूशंस वी टेक इन द सिलेबस आर बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ वन सॉल्वेंट एंड वन solute. This is, that means two components are present. Two components are present. If two components are present, then that is known as binary solutions. One solvent and one solute is present. Okay, and these solutions are homogeneous solutions. These binary solutions may be, note this, ये लिख लीजिए आप स्टार्टिंग वाला, homogeneous solutions. होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है जो आपने पढ़ लिया है पहले से. होमोजीनियस मींस सिंगल फेज होगा, द सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, एंड इफ टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट दैट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशंस. अब देखिएगा ये जो बाइनरी सॉल्यूशंस है, दीज बाइनरी सॉल्यूशंस मे बी gaseous solutions are of three types. One is gaseous solutions, and another one is liquid solutions, and last one is solid solutions. Last one is solid solutions. So let us study about what is the types of gaseous solutions. Gaseous solutions. Okay, here I am writing solute, and here I am writing solvent. In case of gaseous solutions, this is the first type of solutions. This is a type of binary solutions, and all solutions are homogeneous solutions. Okay, here the gaseous solutions means your solvent is always gas. Okay, and here we can take gas type, liquid gas type, and solid gas type of solutions. Here the solute is gas, here the solute is liquid, here the solute is solid, and in all the three cases there is a solvent which is gas. The solvent is always in the gaseous phase because the solution is gaseous. In case of liquid solutions, the solvent is always liquid. In case of solid solutions, then the solvent is always in the solid state. Okay, students. Now, what is the example of this gaseous solutions? You can take oxygen in nitrogen. Okay, oxygen nitrogen combination, that is gas combination. Okay, liquid gas combination means liquid, you can take chloroform in nitrogen. You can take this combination, chloroform mixed with nitrogen gas. And here the solid or gas combination, solid gas combination, you can take camphor.
camphor in gas, oxygen, you can take oxygen. कैम्फर जब ऑक्सीजन हीट करेंगे तो वो गैसेस में कन्वर्ट होगा। तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, ये जो कैम्फर है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे सॉलिड गैस कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये नोट कीजिए तीनों। देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स लिक्विड सॉल्यूशंस। देखो लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सेकेंड टाइप लिक्विड सॉल्यूशंस। तो देखिएगा इसमें सोल्यूट, सॉल्वेंट, एग्जांपल्स है ना। तो देखो यहां पे लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड, तो यहां पे गैसियस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। यस या नो, ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब देखो इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है ना, CO2 इन वाटर, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, दैट इज नोन एज फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज द गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। एंड इन केस ऑफ सेकेंड यू कैन हैव इथेनॉल प्लस वाटर, दिस कॉम्बिनेशन, दिस टू आर लिक्विड्स। तो ये कॉम्बिनेशन लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल है। सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल क्या हो सकता है, ग्लूकोज dissolved in water, that is liquid. This is the combination of the third type. तो क्या हो सकता है, गैसियस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अब हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो उसमें ये भी बता दिया जाएगा, सपोज ये मैं ग्लूकोज ले रहा हूं, ठीक है, ग्लूकोज सॉलिड को मैंने डिसॉल्व कर दिया है वाटर के अंदर, दैट इज लिक्विड के अंदर, तो इसमें क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्पर्सन मीडियम है, दिस वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम, और ये सॉलिड जो इसमें डाला है ये सोल्यूट है, और इस सोल्यूट को बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलेंगे, इसको डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे और इसको डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। ये हम कहां पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, जो सोल्यूट है उसको डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे, जिस मीडियम में आप डाल रहे हो उसको डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। So this is about the liquid solutions. Next, third type, solid solutions. देखो solid solutions में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे solute और यहाँ पे लिख रहा हूं solvent और यहाँ पे examples, ठीक है। देखो सॉलिड, सॉल्वेंट क्या होगा सब जगह, सॉलिड, सॉलिड, और सॉल्वेंट हो जाएगा सॉलिड, और इसमें सोल्यूट क्या हो जाएगा, गैसियस, इसमें लिक्विड और इसमें सॉलिड। तो देखो गैसियस सॉलिड का एग्जांपल बताइए मुझे, हाइड्रोजन इन पैलेडियम कैटलिस्ट, हाइड्रोजन पैलेडियम कैटलिस्ट के ऊपर, ये जो एग्जांपल है ये गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड, बताइए, अमलगम, मरकरी ले लीजिए, अमलगम जो मरकरी है वो किसी सॉलिड मेटल के साथ, सपोज आपने कॉपर के साथ लिख दिया मैंने, या आयरन के साथ लिख दिया, ठीक है, तो आयरन भी क्या है, सॉलिड है, और लिक्विड फॉर्म में क्या है, मरकरी है, ठीक है। तो सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा बताइए, कॉपर इन गोल्ड, गोल्ड के साथ जब कॉपर मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड हो जाएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल्स भी क्या करना है, याद रखना पड़ेगा। गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। तो देखो तीनों कॉम्बिनेशंस हमने पढ़े हैं, गैसियस फेज सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस। तो तीनों के अंदर जो जिस सॉल्यूशन होगा उसका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं सॉलिड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट इज ऑलवेज सॉलिड। If I say liquid solutions, then liquids are the solvent. If I say gaseous solutions, then gases are the solvent. ठीक है, और एग्जांपल्स आपको याद रखना। तो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर, एंड नेक्स्ट वी आर स्टडीइंग concentration terms. Today we will study concentration terms. All concentration terms we will study. Okay, the solution is represented in the form of concentration, and these terms are, many concentration terms are there. First one is mass percentage. First one is mass percentage. Mass percentage means weight upon weight percentage, I can say. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट अपॉन वेट लिख दिया मैंने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और परसेंटेज वेट अपॉन वेट ये भी लिख सकते हैं। तो देखो परसेंटेज वेट अपॉन वेट इक्वल्स टू मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ the solution into 100. This is known as mass percentage. तो देखो एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये हमने पढ़ चुके हैं। सपोज आई एम टेलिंग 20% मास अपॉन मास ऑफ KI। इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम ऑफ KI dissolved in 20 gram of KI dissolved in 100 gram of solution, or I can say 20 gram of KI dissolved in 80 gram of solvent. तो ये आप कैसे भी लिख सकते हो दोनों में से, ठीक है। 20% मास अपॉन मास ऑफ KI का मतलब क्या होगा, 20 ग्राम ऑफ KI डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम ऑफ KI डिजोल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ये तीनों आपने पढ़े थे 11th क्लास में, वही हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वन वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। देखो परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कह सकते हैं इसको, क्या होगा, परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा इनटू 100, बिकॉज इट इज परसेंटेज होगा तो आप 100 लिखते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो पहले, परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, पहले बता देता हूं, दो कंपोनेंट्स है A और B। द सॉल्यूशन will have two components A, B और 1 and 2। अब इसमें एक कंपोनेंट कोई भी ले लीजिए, सपोज वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट A अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मींस कंपोनेंट A प्लस B का वॉल्यूम क्या है वो नीचे आएगा टोटल वॉल्यूम, और ऊपर क्या आ जाएगा, जिस कंपोनेंट का परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम निकाल रहे हो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सपोज मैं A कंपोनेंट का निकाल रहा हूं तो कंपोनेंट A का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ A एंड B,
into 100. Example देखो, if I say 20% volume upon volume of ethanol, or I can say glucose. So what do you mean by this? This is 20 ml of glucose dissolved in 100 ml of solution, or 80 ml of solvent. This is the right thing. Okay, you can write this one or this one. It is both are correct. 20 ml of C6H12O6 dissolved in glucose dissolved in 100 ml of solution, or 80 ml of solvent. Okay, students. So this is about volume percentage. Volume percentage. Then third one is mass volume percentage. You can write mass volume percentage. Mass volume percentage. Here I am writing mass volume percentage. Third one. I can write percentage. Mass means weight. I am writing W symbol or M symbol. You can also write. That is mass of the component of the particular component. Okay, if I say A component, then mass of the A component upon total volume, because here is the volume. Total volume of the solution into 100 you can write. Example, if I say 20% weight upon volume of glucose solution, what will be happened? 20 gram of glucose dissolved in 20 gram of glucose dissolved in, नीचे क्या है? That is volume. तो हम लिखेंगे 100 ml, 100 है ना, 100 ml of solution. Okay, you can write this only. You can't write कि 100 ml of solvent or 80 ml of solvent. You can't write, because mass and volume are different. In case of volume, in case of mass, you can write 80 gram of solvent, but here this is mass and this is volume, hence you can't write 20 dissolved in 80 ml of, because this is 20 grams and it can't be 80 ml of solvent. Hence, because of the problem of this unit, we will write 20 gram dissolved in 100 ml of solution. This means 20% weight upon volume of glucose. It is clear? These are the three concentration terms which are important, simple, and which will be used, asked in the examinations. Next concentration term is ppm. ppm means parts per million. ppm means parts per million. Parts per million means you can write ppm equals to, you can write mass of the component, particular component, upon total mass of the solution. Because this is in millions, hence we will write 10 to power 6, and this formula can be modified as, I am writing this is mass of the component upon total mass of the solution. I am modifying this formula. I am writing 10 to power 2 and in bracket 10 to power 4 I am writing, because 2 plus 4 it becomes 6,
Okay, and this we will write as percentage weight upon weight into 10 to power 4, that is equals to ppm. Okay students, this is important. If you multiple weight upon weight by 10 to power 4, that is equals to parts per million. Okay, because the formula 10 to power 6 is modified as 10 to power 2 means 100. 100 means this is weight upon weight multiplied by 10 to power 4, that becomes ppm. ppm means parts per million. You have the knowledge that oxygen and this type of gases which are dissolved in solution, which are dissolved in environment, are measured in the ppm units. Okay, because they are in the small quantity. Okay student, this is about ppm, parts per million. And next, we are studying, that is fifth one, that is molarity. We will study represented by capital M. This is capital M. Okay, molarity, molality and mole fraction. These are the three last units of very important concentration terms. This is molarity. What do you mean by molarity? Molarity equals to moles of solute upon volume of the solution in liter, that is equals to, how can you write these moles? Moles means weight of a solute upon weight upon, what do you mean by moles? Molecular weight, weight upon molecular weight of solute, that is multiplied by volume of solution in liter. You can write in liter. If you write in ml, then it is divided by 1000. 1000 ऊपर आ जाएगा तो multiplied by 1000 कर देंगे. तो these are the formulas of molarity. Okay, molarity means moles of solute upon volume of the solution in liter. Moles means, what do you mean by moles? Mole equals to weight upon molecular weight. इसके moles of solute बोलेंगे तो weight of the solute upon molecular weight of solute. Okay, देखो solute बोला है तो moles of solute का मतलब होता है upon volume of, moles क्या होता है? weight upon molecular weight of solute multiplied by volume of the solution in ml करेंगे, लीटर की जगह तो 1000 हो जाएगा. अगर क्वेश्चन लीटर में दे रखा है तो आप लीटर लगा देंगे, 1000 मल्टीपल नहीं करेंगे. तो क्लियर है ना? तो नेक्स्ट पढ़ें. देखो इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है. एक बार कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, अभी इसी क्लास में हम करेंगे. सिक्स्थ वन, मोलैरिटी, that is M. Molality equals to moles of solute upon volume of, mass of solvent in kg, kilogram. How can we write this? That is molarity equals to moles. Mole means weight of solute upon molecular weight of solute multiplied by mass of solvent. Mass of solvent in
केजी लिख सकते हो, अगर ग्राम लिखेंगे तो इंटू 1000 आपको करना है, बहुत सिंपल। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला में क्या आपको ध्यान रखना है, क्या डिफरेंस है मोलैलिटी और मोलैरिटी में। मोलैलिटी में क्या आया है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी आया है, लेकिन वहां पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर आया है, तो दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको भूल से आपको सॉल्वेंट लिखना है, सोल्यूट आपको नहीं लिखना है नीचे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह कोई सोल्यूट लिख देते हैं या सॉल्यूशन का मास लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो मोलैलिटी के लिए हमें सॉल्वेंट का मास लिखना है नीचे, ठीक है। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट यूनिट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो देखो मोल फ्रैक्शन हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, बिकॉज इट इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी। तो मोल फ्रैक्शन में देखो, अगर मैं लिखूं मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए कंपोनेंट दैट इज इक्वल्स टू moles of A component upon moles of A component plus moles of B component। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, moles of A component upon total moles, इसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ A। अगर मैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी लिखूं तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी अपॉन Na प्लस Nb। ये बात क्लियर है, तो ये और ये देखिएगा, है ना। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए पूछा है तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी पूछा है तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स आपको करना है, बहुत इजी है। अब देखिएगा, ये भी पॉइंट लिखिएगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए plus mole fractions of B always equal to 1, hence it is said that आपके जो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उनके मोल फ्रैक्शंस का सम है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू ऑलवेज 1। तो ये बात क्लियर है। तो इनका सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, क्लियर है। अब देखो, दिस ऑल आर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या क्या पढ़ा हमने, मास मास पढ़ा हमने, उसके बाद वॉल्यूम वॉल्यूम पढ़ लिया, मास वॉल्यूम आपने पढ़ लिया, पीपीएम आपने देखा, मोलैरिटी आपने देखा, मोलैलिटी, और लास्ट में आपने देखा मोल फ्रैक्शन। अब देखिएगा क्वेश्चन देखो, एग्जांपल क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन in which 5 ग्राम ऑफ NaCl और NaOH ले लो, dissolved in 500 ml of solution। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर देखो कैसे करेंगे, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स, क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ द, फॉर्मूला देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन क्वेश्चन में एमएल में दिया है, तो देखो कैसे करना है। मोल्स का मतलब क्या होता है, सोल्यूट के
वेट कितना दिया है 5 ग्राम, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 इंटू ml कितना दिया है 500 ml दिया हुआ है, इसलिए आप इंटू 1000 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर। क्लियर है? ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन करें। देखो, कैलकुलेट मोलैलिटी, क्या कैलकुलेट करना है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन in which 2.5 gram of इथेनोइक एसिड, क्या होता है इथेनोइक एसिड? ये होता है इथेनोइक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड dissolved in 75 ग्राम ऑफ इथेनॉल। क्लियर है? ये क्वेश्चन करना है हमें। 2.5 ग्राम ऑफ क्या है? 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड विच इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ इथेनॉल। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? करो। देखो, मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम में लिख के इंटू 1000 करेंगे। मोल्स का मतलब क्या होता है? वेट अपॉन इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आप यहां लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 75 ग्राम है इसलिए 1000 लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा मोल पर केजी। यूनिट चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने 1000 लिखा है, तो आंसर आ जाएगा मोलैरिटी मोल पर लीटर, और यहाँ पे मोल पर केजी लिखना है आपको हमेशा, तो आंसर निकाल देंगे आप, है ना। इसका देखो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 काउंट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है? कैलकुलेट मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों कैलकुलेट करना है, और उसके लिए मैंने दिया है वेट अपॉन वेट 20%, वेट अपॉन वेट बस KI सॉल्यूशन ये दिया है आपके, और आपके डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ KI सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.203 ग्राम पर ml, ये आपका डेंसिटी है ग्राम पर ml। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो हम मोलैलिटी निकाल देते हैं। मोलैलिटी क्या? तो देखो, हम सबसे पहले क्या निकाल देते हैं? मोलैलिटी निकाल देते हैं। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो 20% वेट अपॉन वेट आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, और यहां पे मैंने लिख दिया डेंसिटी। ठीक है, तो मोल्स क्या होगा? 20 अपॉन, अब इसका K का जो है मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सोडियम पोटेशियम का 39 और आयोडीन का 127, आंसर आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 166 इंटू 20 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, इंटू 1000 करेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? मोलैलिटी हो गया। अब अपन निकाले मोलैरिटी। तो देखो मोलैरिटी क्या होता है? देखो, मोलैरिटी का मतलब मोल्स अपॉन, देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम तो दिया हुआ ही नहीं है,
वॉल्यूम कहां से निकलेगा? जो डेंसिटी दिया हुआ है, और डेंसिटी किसका दिया हुआ है? सॉल्यूशन का दिया हुआ है। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास कितना है? आप 80 लिखेंगे या 20 लिखेंगे या 100 लिखेंगे, बताइए मुझे। तो डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो मास भी पूरा सॉल्यूशन का आएगा। कितना आएगा? 100 अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.202 मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? 100। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 1.202। तो हम यहां क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। व्हाट डू मीन बाय वॉल्यूम? दिस वन इज वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम कितने में दिया हुआ है? देखो यहाँ पे ग्राम पर एमएल में डेंसिटी दिया हुआ है। तो ये एमएल में दिया हुआ है, इसलिए मैं 1000 से मल्टीपल करूंगा। फर्स्ट पॉइंट इज, देखो आप क्या करेंगे? डेंसिटी में 20 यहाँ पे मास लगाएंगे, तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 20 क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि देखो 20 ग्राम ऑफ के ही है, लेकिन डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की है। तो मास भी किसका लगाएंगे? 20 प्लस 80 कितना लगाएंगे? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। तो डेंसिटी बा सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो आप मास किसका लगाएंगे? यू विल राइट मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, डेंसिटी दिया हुआ है, एक्सचेंज कर लीजिए, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो स्टूडेंट्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो पढ़ा है वो बेसिक चैप्टर का पूरा बेसिक, दिस इज द बेसिक ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। प्लीज गो थ्रू दिस concentration terms and gaseous solutions, liquid solutions, solid solutions, and further we will study the solubility concept. Okay students, thank you, have a nice day.